Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So, students, today we will be starting new chapter, that is chapter number 13, algebraic expressions. Algebraic expressions are the combination of variables, constants and various mathematical operators. अगर किसी भी चीज को आप लिख रहे हो उसमें आप कॉन्स्टेंट्स का भी यूज कर रहे हो, वेरिएबल्स का भी यूज कर रहे हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन का यूज कर रहे हो. Therefore, we can say that the combination of all these is termed as algebraic expression. Okay, so let's start exercise 13a. Question is saying that you have to identify whether the given elements or whether the given algebraic expressions are monomial, polynomial or binomial or trinomial. ठीक है. Question number 1, first part it is given 7p square into a cube b. 7p square into a cube b. So this could be written as 7p cube a cube b. ठीक है. तो ये कैसा है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है. Therefore this is a monomial. You can also understand that कि जब भी बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साइंस होंगे तो वो वाले टर्म्स हमेशा मोनोमियल ही होंगे. Similarly, in second part it is given 5 plus 3x cube y cube z square. ठीक है. And you have to identify whether this is monomial or binomial. एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये, therefore this is binomial. Now third is 3x square divided by p. 3x square divided by p. This could be written as 3x square upon p. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हैं? केवल एक एलिमेंट है. Therefore this is monomial. ठीक है. So I have told you कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन होंगे तो भी मोनोमियल होगा और सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के साइन होंगे तो भी मोनोमियल ही हमेशा होगा. ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं. Part number 5. This is given xy plus yz minus zx. xy minus yz. xy plus yz minus zx. You can clearly see one element, two element and three element. Therefore, this will be a trinomial. ठीक है. तो ये क्या होगा? This will be a trinomial. Similarly, we can see part number 6. ax square प्लस bx इंटू वाई स्क्वायर. ठीक है. यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो इसमें और इसमें कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है. ठीक है. कि ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स है, वो मैं बात बताऊंगा आपको आगे. ठीक है. बट दिस कुड बी रिटन एज अ सिंगल टर्म, सो वी कैन राइट इट ax स्क्वायर प्लस दिस विल बी bxy. तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है. देयरफॉर दिस इज अ बाइनोमियल. So this is how you can complete question number 1. Now let's move to question number 2. Question number 2 is saying that you have to find out the coefficient of the given algebraic expressions. Now what is coefficient? Let's see question number 1. It is saying minus 2p cube q square. Minus 2p cube q square. ठीक है. इसमें आपको कोएफिशिएंट बताना है. तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 इज द कांस्टेंट टर्म. देयरफॉर वी कैन से दैट इसका जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू -2. -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेट्स सी वन मोर एंड देन यू कैन सॉल्व by your own. Part number 5, it is given 2ab upon c. तो इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाय ab upon c. तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 2. देयरफॉर इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स को भी अपने आप कर सकते हो. Now question number 3. This is a little more important. It is saying that in 5p square q cube
r की पावर 4. This is an algebraic expression and they are saying that you have to find the coefficient of p square. क्या है इसमें आपको फाइंड करना है कि p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. जब ऐसा मेंशन कर दिया जाए आपको कि p स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए तो p स्क्वायर को केवल छोड़ दो और बाकी जो बच रहा है दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर. दैट विल बी -5 q cube and r की पावर 4 is the coefficient of p square. ठीक है. Similarly, next is they are saying that what will the coefficient of 5p q square. 5p q square. इस algebraic expression में 5p q square का coefficient क्या होगा. तो इसमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा. 5 आप ड्रॉप कर दो, क्या बचा माइनस तो है ही. p ड्रॉप कर दो, यहाँ पे p स्क्वायर है, एक p हटाओगे तो क्या बचेगा, एक p सिंगल विल रिमेन. यहाँ पे q स्क्वायर है बट यहाँ पे q क्यूब है, मतलब कि 3 में से 2 हटा के केवल q यूज करेंगे और r के लिए कुछ बोला नहीं है, देयरफॉर r की पावर 4. वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ 5pq स्क्वायर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज -pq r की पावर 4. ठीक है. तो सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स को भी कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is saying that you have to identify like terms. ठीक है, like terms को आपको identify करना है. First question is a square b square minus 2a square comma c square 4a. ठीक है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स. पहली चीज ये कि लाइक टर्म्स देखते समय आपको प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है. ठीक है. अगर कहीं प्लस लगा या कहीं माइनस लगा है उसको आप इग्नोर करेंगे. यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, देयरफॉर ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, दे आर लाइक टर्म्स. ठीक है. सिमिलरली b स्क्वायर और का कोई भी दूसरा लाइक टर्म नहीं है. सिमिलरली सी स्क्वायर का भी कोई भी लाइक टर्म नहीं है और ऐसे ही 4a का भी कोई भी लाइक टर्म नहीं है. देयरफॉर आप बोल सकते हो a स्क्वायर एंड -2a स्क्वायर आर लाइक टर्म्स. ठीक है. ना ही पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क पड़ता है और ना ही कांस्टेंट वैल्यू से फर्क पड़ता है. सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किससे, इस वेरिएबल की पावर से और वेरिएबल से फर्क पड़ेगा. ठीक है. Now let's see one more part. For example, part number 4, it is given ABC, comma AB square C, comma ACB square, then C square AB, then B square AC, then a square bc and cab square, and cab square. You have to find out which are the like terms. स्टार्ट से शुरू करते हैं abc. You can not find कहीं पे भी abc आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, therefore abc का कोई भी like term नहीं है. ab square c दूसरा कहीं दिख रहा है आपको, ab square c भी ये वाला है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे देखो b स्क्वायर a c एंड c. इसका मतलब ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, दे आर लाइक टर्म्स. इनके ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता. लास्ट दिस वन acb स्क्वायर इसी में आ जाएगा. उसके बाद cab, ये वाला टर्म, ये टर्म और ये वाला टर्म भी, ये भी क्या है, लाइक एलिमेंट है, लाइक टर्म है. व्हाई, बिकॉज यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, b स्क्वायर c एंड c. सिमिलरली b स्क्वायर a c एंड c. देयरफॉर दिस टर्म एंड दिस टर्म, दे आर व्हाट, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. कोई और चेक कर सकते हैं. acb स्क्वायर
दिस इज ऑल्सो बी स्क्वायर ए सी, तो ये भी लाइक टर्म ये है, भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है, ए है, सी है, ए है और सी है और बी स्क्वायर है। अब सी स्क्वायर वाला टर्म कोई दूसरा नहीं है, ए स्क्वायर वाला टर्म भी दूसरा नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर सी, ए सी बी स्क्वायर ए सी एंड सी ए बी स्क्वायर क्या है, आर लाइक टर्म्स, ठीक है। तो